خدا کے خادم کے لیے خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر نہیں ہیں، لیکن وہ جہاں پر بھی ہیں ان کے لیے خداوند کی برکت سلامتی مانگتے ہیں کہ جیسے وہ سلامتی سے گئے ہیں ویسے ہی سلامتی سے یہاں پر واپس آئیں۔ پریز ہاللویا۔ میں آج آپ کے لیے ایک ٹاپک لے کر آئی ہوں، وہ سبھی جانتے ہیں کیونکہ خدا کا کلام سبھی پڑھتے ہیں۔ روح القدس کی نعمتیں آپ جانتے ہیں کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں۔ ہاللویا۔ میرے ساتھ نکالیے پہلا کرنتھیوں 12 باب اس کی 7 سے ہم 10 آیات تک پڑھیں گے۔ لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام، کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا۔ مسیح کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ اور اب ہم نے ان ورسز کو دیکھا جس میں ہم نے خداوند روح القدس کی نعمتیں پڑھی ہیں۔ کون کون سی نعمتیں تھی بتائیں گے؟ جی بالکل، ہاں جی، روحوں کا امتیاز پرکھنا، بالکل، موضوع کی قدرت۔ ہاں جی، روح کی 9 نعمتوں کو روح کا ظہور بھی کہا جاتا ہے۔ ان نعمتوں کا جو مقصد ہے وہ ایماندار کی زندگی میں ترقی کا باعث، کلیسیا کی ترقی کا باعث ہو۔ یہ ان نعمتوں کا اس لیے ذکر کیا گیا ہے تاکہ جو ایماندار ہیں، جب وہ روح القدس کی نعمتوں کو لیتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں تو وہ ترقی کرتے ہیں، اپنی زندگی میں اپنے ایمان میں مضبوط رہتے ہیں اور اپنی جو اس کی بنیاد ہے اس کو قائم رکھتے ہیں۔ اسی طرح کلیسیا کی بھی ترقی ہوتی ہے۔ اور ان کا ظہور روح کی مرضی پر ہے اور ایماندار کے مانگنے پر بھی ہے کہ وہ روحانی طور پر کس طرح ترقی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ ہم جو یہ نعمتیں ہیں جو ابھی ہم نے بولی، ان نعمتوں کو ہم 3 گروپ میں ڈیوائیڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھتے ہیں۔ پہلا جو ہم نے پڑھا تھا علمیت کا کلام، حکمت کا کلام اور روحوں کا امتیاز، اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے مکاشفاتی نعمتیں۔ اور سیکنڈ جو ہے وہ تھا قوت کی نعمتیں، جس میں ایمان، شفا اور معجزات ہیں۔ تیسرا ہے صوتی نعمتیں، جس میں طرح طرح کی زبانیں، زبانوں کا ترجمہ اور نبوتی کلام۔ اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے اور ایک ایک ٹاپک کو میں واضح طور پہ بیان کروں گی۔ جب خدا کے خادم نے بولا کلام کے لیے، مجھے نہیں پتا تھا، کل مجھے اس سرمن کو تیار کرنے میں تقریباً 2-3 گھنٹے لگے تھے اور میں اپنے ہسبینڈ کو بار بار کہہ رہی تھی کہ کتنا مشکل ہے سرمن کو تیار کرنا۔ بہت سے لوگ، بہت سے ایسے خادمین، میں کسی کے لیے نیگیٹو نہیں بول رہی، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس بارے میں کہتے ہیں کہ چٹکیوں میں سرمن تیار ہوتا ہے، لیکن جب آپ تیار کرنے بیٹھتے ہو روح کی ہدایت میں، آج ہم انہی چیزوں کو، اسی کے بارے میں ہم سیکھیں گے کہ علمیت کا کلام کیا ہے، حکمت کا کلام کیا ہے، روحوں کا امتیاز کیا ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں ایک ایک ورس کو نکال کے، ہر چیز کو سرچ کر کے پھر ہمیں بیان کرنا ہوتا ہے۔ مکاشفاتی نعمتیں۔ پہلا تھا علمیت کا کلام۔ اس کے بارے میں تھوڑا میں آپ لوگوں سے بھی پوچھوں گی، علمیت کے کلام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ علمیت کا کلام کیا ہے؟
کوئی بتائے گا؟ بائبل کی گہری باتیں. جی آپ سبھی اس کے بارے میں جانتے ہیں لیکن تھوڑی سی کنفیوژن کی وجہ سے. جی بالکل، کیونکہ جب میں نے اس کا ٹاپک بولا تھا مکاشفاتی نعمتیں، فین آن کر دیں. علمیت کا کلام دنیاوی اور روحانی علم سے مختلف ہے. جو دنیاوی کلام ہے وہ دنیاوی باتیں ہم دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم نرسری سے آگے کی جو ایجوکیشن ہماری ہوتی ہے وہ کنٹینیو رہتی ہے، تو وہ ہمارا دنیاوی کلام آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کا علم جو ہے وہ دنیاوی ہے. لیکن جب ہم بائبل کالج سے سیکھتے ہیں، سیمنری کرتے ہیں یا کچھ بھی بائبل اسٹڈی کرتے ہیں، تو وہ ہماری روحانی تعلیم آ جاتی ہے. خدا پاک روح کے وسیلہ سے ایماندار پر ہر اشخاص، چیزوں، جگہ اور واقعات کے بارے میں حقائق ظاہر کرتا ہے. اگر اس کے پاس کسی بھی چیز کے بارے میں علم نہیں تو وہ کلام کے بارے میں دوسرے کو کیا بتائے گا؟ اگر آپ سے سوال کیا جائے گا بائبل سے ریلیٹڈ کہ آپ ہمیں اس کے بارے میں جواب دیں تو آپ کیا کہیں گے؟ جب آپ کو اس کے بارے میں علم ہی نہیں تو آپ اس کا جواب کیسے دیں گے؟ نہیں دے. بالکل یہ پاسبل ہی نہیں کہ جب تک ہم سیکھیں گے نہیں، ہم خدا کے کلام کو جانیں گے نہیں، پہچانیں گے نہیں، تو ہم اس کا جواب کیسے دیں گے؟ کیونکہ ہم اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں، ہمارے پاس اس کا علم ہی نہیں ہے. وہ دوسروں کو کیا جواب دے گا؟ وہ مسائل کا حل کیسے نکالے گا؟ ٹھیک، جو میں نے ابھی پہلی بات بتائی کہ جب کوئی پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کچھ بھی نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہی نہیں. اگر کلیسیا میں سے کوئی اٹھ کر آپ کے پاس آتا ہے کہ آپ ایماندار ہیں بھائی، بائبل سے مجھے بائبل کھول کے بتائیں، اس کے بارے میں مجھے سوال کیا گیا ہے، اس کا جواب مجھے چاہیے، تو آپ اس کا جواب کیسے دیں گے؟ اس کے مسائل کا حل، جو ایک مسئلہ ہے، آپ اس کو سولو کیسے کریں گے؟ یہ پاسبل نہیں ہے. بنا جانے، بنا علمیت کے کلام کو جانے آپ کسی بھی بات کا جواب نہیں دے سکتے، اور آپ کے پاس اس کا حل نہیں ہے. اگر علمیت کا کلام ہماری زندگی میں ظاہر ہوتا ہے تو اس سے روحانی کلیسیائی ترقی ہوتی ہے. جو ایماندار ہیں، جیسے خدا کے خادمین ہیں، پرستار ہیں، جتنے بھی خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، جو خدا کو جانتے ہیں، خدا کے کلام کو جانتے ہیں، ان کے پاس اگر خدا کا کلام ہے، اس کے بعد اس کے پاس نالج ہے، علمیت کا کلام ہے، تو وہ کلیسیائی ترقی کے لیے بھی پازیٹیو ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ہر بات کا جواب ہے، وہ ہر مسئلے کو حل کرے گا. اگر باہر سے کوئی آ جائے گا کہ ہم چرچ کے لوگ ہیں، کلیسیا ہیں، تو ہمیں بتائیں ہم کس طرح اس پرابلم کو حل کریں گے، ہمیں کوئی سجیشن مانگتا ہے تو وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہ تب ہے جب آپ علمیت کے کلام کو رکھتے ہیں، اور یہ تب ممکن ہوگا جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں. ہاللیلویا. جب ہم خدا سے مانگتے ہیں تو کیا خدا ہمیں دیتا نہیں؟ صرف مانگنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم ایمان کے ساتھ خدا سے مانگیں گے نا کہ خداوند میرے نالج کو بڑھا، میں بائبل کو پڑھنا چاہتی ہوں تاکہ میرا ایمان بڑھے اور میں ان چیزوں کے بارے میں سیکھوں کہ اس میں کیا ہے، تو تبھی ہم کلیسیا کے لیے بھی ترقی کا سبب ٹھہریں گے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حکمت کا کلام. حکمت کی ایک قسم دنیاوی ہے جو پیدائش یا ماحول اور تعلیم و تربیت کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے. اس سے بڑھ کر ایک اعلیٰ قسم کی روحانی حکمت کلام مقدس سے حاصل کی جاتی ہے. بھائی میرے ساتھ نکالیے زبور 119 93 سے ہم 100 تک دیکھیں گے کہ خداوند حکمت کے بارے میں کیا بیان کرتا ہے. Yes. 119, 97. 97, 200.
मैं तेरी शरीयत से कैसी मोहब्बत रखता हूँ। Praise. मुझे दिन भर उसी का ध्यान रहता है। तेरे फरमान मुझे मेरे दुश्मनों से ज़्यादा दानिशमंद बनाते हैं, क्योंकि वो मेरे साथ हैं। मैं अपने सब उस्तादों से अक्लमंद हूँ, क्योंकि तेरी शहादतों पर मेरा ध्यान रहता है। मैं उम्र रसीदा लोगों से ज़्यादा समझ रखता हूँ, क्योंकि मैंने तेरे कवानीन को माना है। मैंने हर बुरी राह से अपने कदम रोक रखे हैं, ताकि तेरी शरीयत पर अमल करूँ। मैंने तेरे अहकाम से किनारा नहीं किया, क्योंकि तूने मुझे तालीम दी है। Praise. बेशक इसमें बताया जा रहा है खुदा के कलाम को कि हम उसकी शहादतों को मानते हैं। क्या हम उसके कवानीन को मानते हैं? क्या हम उसके अहकामात को मानते हैं? एक ईमानदार होते हुए हमारी जिंदगी में ये सब चीजें होनी चाहिए। हिकमत दनाई। सुलेमान बादशाह ने क्या कहा था खुदा से कि मुझे अक्ल और दनाई चाहिए। उसने हिकमत मांगी, और ये जब उसने हिकमत मांगी तो उसने तब 2 औरतों का फैसला तब किया जब उसके पास हिकमत थी। अगर उसके पास हिकमत ना होती तो वो किस तरह करता? कि जो आप लोगों ने सुना होगा कि जो 2 औरतें थी उन्होंने अपने बच्चे चेंज किए, मुर्दा और जिंदा को, ठीक है। और जो जिंदा बच्चा था वो दोनों कह रही थी कि हमारा है, लेकिन उसने हिकमत और दनाई के साथ उस बात का फैसला किया कि ये बच्चा किसका है और इसकी माँ असल कौन है। इसी तरह अगर हम भी खुदा के साथ चलते हैं, अगर हमारी जिंदगी में भी हम उसके अहकामात को मानते हैं, उसके कवानीन को मानते हैं, तो तब हम भी ये सब कर सकते हैं। हम उसकी हिकमत और दनाई को अपनी जिंदगी में ले सकते हैं। पाक रूह हिकमत का कलाम, अल्फाज, फिक्रात और पैगाम बख्शता है। इसी तरह हमारी जिंदगी में भी ये सब जरूरी है कि हम इन चीजों को अपनी जिंदगी में लें, तभी हमारी भी तरक्की होगी और कलीसिया की भी। और तीसरा जो इसी का पॉइंट है मुकाशफाती नेमतों का, वो है रूहों का इम्तियाज करना। रूहों के इम्तियाज की नेमत से दरपेश मसाइल और गुनाहों के पीछे असल मुहरकात और रूहों को परखा जाता है। जब तक कोई शख्स खुदा, कलीसिया और दूसरे ईमानदारों के साथ वफादार ना हो तो उसके रूहों का इम्तियाज जो है वो दुश्वार हो जाता है। वो किस तरह? बहुत से लोग उठ के आ जाते हैं कि जी हम पास्टर हैं, और ये गलत बात है। खुदा को ये चीज़ें पसंद नहीं है। अगर आप नहीं हैं, कईयों ने इसको अपनी कमाई का जरिया बनाया हुआ है। मैं आपको एक बात बताऊंगी जो मुझे बहुत देर के बाद अब इसी टॉपिक से मुझे याद आई। तब मैं अपने इन-लॉज में ही थी, और जो मेरे बहनोई थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, काफ़ी वो बीमार थे। तो वो ज़्यादा कंडीशन ख़राब होने की वजह से लाहौर में ही थे, क्योंकि उनको वहाँ से मुरीद के से आना पड़ता था। तो एक पास्टर, हम उसे नहीं जानते, मेरे घर वाले नहीं जानते, लेकिन उसने क्या लालच दिया। उसने कहा कि मुझे 5-10 हज़ार दें और आपका जो बेटा है वो ठीक हो जाएगा। और इसके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते थे कि क्या हुआ, किस तरह हुआ, लेकिन वो 5,000 लेके वहाँ से दुआ की और चला गया। जब मुझे इस बारे में बात का पता चला तो मैंने अपने पेरेंट्स को कहा कि ये गलत बात है। आप लोग किस तरह आप किसी पे भी यकीन कर सकते हैं कि आप ये कहें कि ये जी खादिम है, तो नहीं खादिम है, हम इसके बारे में जानते नहीं, लेकिन वो खादिम है, पास्टर का खिताब मिला है, वो गलत बात है। ये है रूहों का इम्तियाज। इसके लिए हमने क्या करना है? खुदा से दुआ करनी है कि हमें खुदावंदा इस चीज के लिए, रूहों का इम्तियाज करने के लिए हमें समझ, बूझ, अक्ल, दनाई अता कर, ताकि हम खादिमीन को भी परख सके कि खादिम है भी कि नहीं है। हालेलुया। तो उसके बाद मेरे बहनोई की डेथ भी हो गई है, लेकिन वो खादिम को आज तक नहीं देखा, उसके बारे में हम नहीं जानते। और कोई भी खादिम ये कभी नहीं कहेगा कि आप पैसे दें और इसको शिफा मिल जाएगी। शिफा खुदा के हाथ में है। हालेलुया। इसलिए जो वफादार हैं, खुदावंद रूहों का इम्तियाज इन्हें बख्शता है। अगर हम खुदा के साथ चलते हैं, वफादार हैं, हम खुदा के अहकामात को मानते हैं, तो हम इस रूहों के इम्तियाज को अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं। हम परख सकते हैं कौन सही है और कौन गलत है। हालेलुया।
फिर हम देखेंगे सेकंड जो पॉइंट था वो है ईमान, शिफा, मौजज़ात जो कुव्वत की नेमतें हैं। ईमान के बारे में हम देखेंगे। ईमान कम इत्तेकादी, शकूक और नामुनासिब हालात में फरमाबरदारी के कदम उठाने और बढ़ने में कुव्वत और तहरीक देता है। और एक कुदरती या फितरी ईमान भरोसा है जो हर इंसान में पाया जाता है, वो मुझ में, आप में, हम सब में पाया जाता है, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो हमें जोर बख्शता है, हमारे अंदर ईमान को बढ़ाता है। जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, खुदा के कलाम की बातों को सीखते हैं, तो हमारा जो ईमान है वो इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पुराने अहदनामा में भी देखें तो वहाँ पर भी बहुत सारे मौजज़ात हैं। वहाँ पे भी जितने अंबिया कराम थे उनकी ज़िंदगियों में बहुत सारे ऐसे मौजज़ात हैं। ईमान के वसीला से शिफा है। और इसी तरह पुराने अहदनामे में भी देखें तो उसमें तो बेइंतहा हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने खुद किए। हालेलुया। और ये एक कुदरती या फितरती ईमान है जो कि हर इंसान में पाया जाता है। दूसरा नजात बख्श ईमान है जो नजात पाने के लिए रूहुल कुद्स बख्शता है। और तीसरा जो है वो तकदीस बख्श ईमान है जिससे ईमानदार आंखों देखे नहीं बल्कि ईमान से चलता है। दूसरा क्रंथियों 5:7 में देखिएगा। दूसरा क्रंथियों 5:7। और हम ईमान के बगैर कुछ नहीं है। अगर हमारी जिंदगी में ईमान नहीं तो हम कुछ नहीं है, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। गर्ज हमारी खातिर जमा है और हमको बदन के वतन से जुदा होकर खुदावंद के वतन में रहना ज्यादा मंजूर है। हालेलुया। बेशक बहुत से ऐसे लोग हैं जो ईमानदार नहीं हैं, और वो समटाइम ये होता है कि आप सामने आपके बहुत सारे मौजज़ात हो रहे हैं लेकिन आप रिसीव नहीं ब्लेसिंग को कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा ईमान कमजोर होता है, डगमगा रहा होता है, और हमारे सामने सब कुछ चल रहा है लेकिन फिर भी हम यकीन नहीं करते। फिर हम देखेंगे इब्रानियों 11:1 में, इसलिए हमारी जिंदगियों में आप पढ़िए। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। प्रेज़ हालेलुया। बेशक अगर खुदा का कलाम कहता है ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। अगर हमारे पास कोई चीज रखी नहीं हुई और हम कहें कि वो वहां पर पड़ी है, और ये क्या है? ईमान है। क्योंकि वो चीज सामने नहीं है लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि वो है, और ये हमारा ईमान जो हमें मजबूती बख्शता है, जो हमें जोर बख्शता है, हमें कुव्वत बख्शता है। हालेलुया। इसी ईमान में हम आगे बढ़ते हुए खुदावंद के नाम को जलाल देंगे, क्योंकि ईमान के वसीला से हमारी जिंदगियों में शिफा आती है, मौजज़ात आते हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ईमान के वसीला से हमारी जिंदगी में होती हैं, और खुदावंद यीशु मसीह को जलाल मिलता है। फिर देखते हैं शिफा। इलाही शिफा का काम काबिल इलाज और नाकाबिल इलाज बीमारियों की शिफा में जाहिर होकर खुदावंद के जलाल का सबब ठहरता है। क्योंकि अगर हमारी जिंदगी में शिफा है तो हम दूसरों को बताते हैं, वो एक गवाही के तौर पे हमारी जिंदगी में आती है। जैसा कि मैंने पहले भी एक दफा बताया था कि मैंने जब सेमिनरी की थी तो मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं डायरेक्ट बाइबल कॉलेज में चली जाऊं। मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा खुदा ने काम किया था, और ये चीज़ मैंने कभी नहीं सोची थी कि मैं सेमिनरी करूंगी या बाइबल कॉलेज जाऊंगी। मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। लेकिन जब मैं सोती थी और मुझे इस तरह के मतलब मैं जागते हुए ये सोच रही होती थी कि मैंने आजकल में मर जाना है, और मैं अपनी माँ की गोद में होती थी और मेरे लिए सिर्फ दीवार को मैंने देखते रहना, छत को देखते रहना कि ये सब क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। और ये गवाही देते हुए मैं रियली नहीं शर्माती, क्योंकि खुदा ने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा काम किया था।
اور اس وقت یہ سب اس طرح چل رہا تھا کہ جیسے آج کل میں مجھے کچھ ہو جائے گا. تب میری شادی نہیں ہوئی تھی, میں ان میرڈ تھی, اور میں کالج کے بعد میں فری ہوئی تھی. اور جب یہ پرابلم میرے ساتھ چلنا شروع ہوا اور دن بہ دن میں ویک ہوتی چلی جا رہی تھی, اور میرے پیرنٹس جو ابھی بھی خدا کے ساتھ چلتے ہیں اور خداوند اسی طرح چلاتا رہے, اور وہ اس چیز کو لے کے پریشان ہوتے تھے, لیکن انہوں نے اپنی امید کو قائم رکھا. جو انہوں نے اس چیز کو, جب خادمین ہمارے گھر میں آتے تھے, بشپ برٹن روئے, وہ پہلے بھی میں نے نام بولا ہے, بڑے اچھے عظیم خدا کے خادم ہیں, اور خدا نے ان کو اپنی خدمت کے لیے اتنا استعمال کیا, اتنی ٹیسٹمنیز ہیں. اور وہ جب بھی میرے لیے دعا کرتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا, بس خدا پہ یقین رکھو. اور مجھے کبھی روح القدس کا بپتسمہ نہیں ہوا تھا, لیکن جب میں نے شفا پائی, میں نے ایک دن شام کا ٹائم میں نے جب شفا پائی, اور ایک دم سے میری باڈی ایسے جیسے ہیل ہو رہی ہے, مجھے نہیں اس چیز کا پتا, لیکن میں ہیل اس طرح ہو رہی, مجھے فیل ہوا کہ مجھے نا دعا کرنی چاہیے. جب ایک بندہ بیمار ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس طرف نہیں آتا, لیکن میں اپنے آپ کو میں نے اس طرح فیل کیا کہ جیسے میں ہیل ہو رہی ہوں, اور میں ایسے صوفے پہ بیٹھی اور میں نے پرے کی, تو اسی ٹائم خدا کا روح القدس مجھ پر ٹھہرا اور میں غیر زبان میں دعا کرنا شروع ہو گئی. اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب کیا ہے, میری زبان کیوں بدل رہی ہے. لیکن جب میں نے کال کی خدا کے خادم کو کہ انکل مجھے پتا نہیں کیا الفاظ آ رہے ہیں, میں اس لینگویج کو نہیں سمجھ پا رہی, لیکن انہوں نے کہا بڑے ہیپی موڈ میں, انہوں نے کہا پریز دی لارڈ, خدا نے آپ کو شفا دے دی ہے اور آپ روح القدس سے معمور ہو گئی ہیں. ہاللیلویہ. اسی طرح اس ٹاپک میں نے آپ کو یہ بتایا کہ شفا ہماری زندگی میں کس طرح آتی ہے جب ہم خدا کو قبول کرتے ہیں, جب ہم خدا کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں, جب ہماری زندگی میں گواہی آ جاتی ہے, جب ہماری زندگی میں معجزات آتے ہیں, تو پھر شفا کی ندیاں جاری ہو جاتی ہیں. اور اسی طرح نعمان کوڑی کو دیکھیں کہ 7 بار گوتے لگانے تک شفا کا انتظار کرنا پڑا اسے, لیکن آج آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی اس طرح کرنا پڑے, ایک گوتے میں وہ کہے گا کہ میں اس بات کو ختم کر رہا, مجھے نہیں چاہیے, میرے سے یہ 7 بار والا کام نہیں ہوگا. اگر آپ امیجن کریں, آپ اس چیز کو سوچیں, تو آپ یہی چیز کہیں گے کہ جب میں اس چیز کو پڑھ رہی تھی تو تب میں بھی اس چیز کو سوچ رہی تھی کہ 7 بار اس نے جا کے بار بار گوتے لگائے, اور اس نے یہی کہا کہ میں نے شفا پانی ہے, مجھے خدا نے کہا ہے, خدا یسوع نے کہا ہے, اور میں نے جا کے شفا اپنی زندگی میں ریسیو کرنی ہے. ٹھیک ہے, لیکن خدا اگر ہماری زندگی میں یہ سب ہوتا ہے تو ہمیں بہت ڈیفیکلٹ لگتا ہے کہ ہم نہیں کر پاتے, کہ ہمیں اسٹرگل کرنا بہت مشکل لگتا ہے, ہمارے لیے یہ کام بہت مشکل ہے. اگر ہم بے دل نہ ہوں تو عین وقت پر کاٹیں گے. اور غلطیوں 6 باب اس کی 9 آیت میں دیکھیے گا, ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں, کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے. ہاللیلویہ. بے شک جب ہم بے دل ہو جاتے ہیں تو شفا ہماری زندگی سے جاتی رہتی ہے. اگر ہم پر امید ہوتے ہیں, اگر ہم ہوپ رکھتے ہیں کہ مجھے شفا چاہیے اور میں نے خدا سے ہی لینی ہے, میں نے اس کلام کے وسیلہ سے ہی اپنی زندگی میں شفا لینی ہے, تو سب کام پاسبل ہوتے چلے جاتے ہیں. ہاللیلویہ. کیا آپ کو کلام سمجھ آ رہا ہے؟ ہاللیلویہ. پھر ہم دیکھتے ہیں تیسرا جو اس کا پوائنٹ ہے وہ ہے معجزات. خدا کی براہ راست مداخلت کے ذریعے درپیش مشکلات اور کٹھن حالات پر غلبہ پانے اور ان سے رہائی کا نام کیا ہے؟ معجزات. جو معجزات ہیں وہ ابلیسی قوتوں کی کارکردگی روکنے, ختم کرنے اور پرگندہ کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں. یہ روح کی ایک نعمت اور اس کا ایماندار میں ظہور ہے. متی 15:30 میں دیکھیے گا کہ خدا یسوع مسیح نے کس طرح معجزات کیے. ٹنڈوں کا شفا پانا, اور ایک بڑی بھیڑ لنگڑوں, اندھوں, گونگوں,
टुंडों और बहुत से और बीमारों को अपने साथ लेकर उसके पास आई और उनको उसके पाँव में डाल दिया और उसने उन्हें अच्छा कर दिया। हालेलुया। बेशक खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में अभी भी वो मौजज़ात का मंबा है, शिफा का सागर है, अभी भी वो मौजज़ात करता है अपने लोगों के ज़रिए से। हम जो ईमानदार हैं, जो खुदा के साथ चलते हैं, उनके ज़रिए से करते हैं। लेकिन उस वक्त खुदा ने इतने मौजज़ात किए जो अभी देखा आपने कि टुंडों का शिफा पाना। फिर हम देखेंगे ईमाल 12 उसकी पहली से 11 आयत में कि किस तरह फरिश्ते ने पतरस को जेल से रिहाई दी थी। हाँ जी, अमाल 12 1 से 11। करीबन उसी वक्त हेरोदिस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बाज पर हाथ डाला और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आए तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया और ये ईद फितर के दिन थे और उसको पकड़कर कैद किया और निगहबानी के लिए 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस इरादा से कि फसह के बाद उसको लोगों के सामने पेश करें। बस कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदिलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। और जब हेरोदिस उसे पेश करने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों में बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था और पहरे वाले दरवाजा पर कैद खाना की निगहबानी कर रहे थे कि देखो खुदावंद का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ और उस कोठड़ी में नूर चमक गया और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा कि जल्द उठ, और जंजीरें उसके हाथों में से खुल पड़ी। फिर फरिश्ता ने उससे कहा कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। उसने ऐसा ही किया। बिल्कुल जैसे फरिश्ता ने पतरस को जेल से रिहाई दी, ये भी उनकी जिंदगी का मौजज़ा था और खुदावंद ने ऐसे बेइंतहा मौजज़ात किए हैं। और फिर हम देखते हैं अमाल 16 25 से 26 आयत, पालूस रसूल और सलास को जेल जाने से भूचाल के जरिए छुटकारा दिया और ये भी खुदा ने इनकी जिंदगी में मौजज़ा किया था कि ये मौजज़ात हमारी ज़िंदगी में तब आते हैं जब हमारा ईमान इंक्रीज़ होता है और जब हमारी ज़िंदगी में शिफा आती है, और जब शिफा आती है तो तब हमारी ज़िंदगी में मौजज़ात होते हैं, और जब मौजज़ात आते हैं तो हमारी ज़िंदगी में क्या गवाही आती है। हालेलुया। फिर हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, सूती नेमतें, और इसका जो पहला है तरह तरह की ज़ुबानें और ज़ुबानों का तर्जुमा, और तीसरा नबूवत। पहला हम देखेंगे तरह तरह की ज़ुबानें। तरह तरह की ज़ुबानें बोलना ईमानदारों की तरक्की का बाइस है और इससे कलीसिया की तरक्की मुमकिन है। इसलिए हमें जब हम ज़ुबानें बोलते हैं तो उस वक्त हमें अपनी ज़िंदगी में हलीमी इख्तियार करनी चाहिए। और ये तब होता है कि बहुत से ऐसे लोगों को देखा जाता है कि जब गैर जुबान में दुआ कर रहे होते हैं या गैदरिंग में या बहुत ज़्यादा क्राउड होता है तो उसमें जब वो गैर जुबान में दुआ करते हैं तो वो समटाइम अपने आप को इस तरह शो करवाते हैं जैसे उनकी ज़िंदगी में वो एक शोखी मार रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में शेखी कह लें कि शेखी मार रहे हैं गुरूर और फख्र के साथ। लेकिन ये खुदा को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, क्योंकि जब हम गैर जुबान बोलते हैं तो हमें ये आसपास ये सब चीज़ें देखनी चाहिए कि हम गैर जुबान बोल रहे हैं, लेकिन ये तब कि खुदा जब आपको कुव्वत दे, जब खुदा आपको इस चीज़ के लिए कहे कि आपको कुव्वत मिलती है कि आपने गैर जुबान बोलनी है, तो ये नहीं कि हमें शेखी नहीं मारनी चाहिए। और ये खुदा को इन चीज़ों से नफरत है, क्योंकि हमें दिखावा खुदा को नहीं पसंद। क्योंकि बहुत से लोग ये जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि गैर जुबान उसे आती है, जो उसके साथ बैठे हैं या खड़े हैं उनको गैर जुबान नहीं आती। और बहुत से लोग ये दिखावा करने की कोशिश करते हैं और ये गलत बात है। खुदा को इन सब चीज़ों से नफरत है, खुदा ये सब चीज़ें पसंद नहीं करता। इसलिए हमें बावक्त ज़रूरत
और हालात के मुताबिक बेगाना ज़ुबानों का शाइस्तगी से इस्तेमाल करना चाहिए। पहला करंथियों 14 बाब उसकी 4 से 5 आयत देखेंगे। पहला करंथियों 14 बाब जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है, और जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। अगरचे मैं ये चाहता हूं कि तुम सब बेगाना जुबानों में बातें करो, लेकिन ज्यादातर यही चाहता हूं कि नबूवत करो, और अगर बेगाना जुबानें बोलने वाला कलीसिया की तरक्की के लिए तर्जुमा ना करे तो नबूवत करने वाला उससे बड़ा है। बिल्कुल खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमें खुदा का कलाम जो हमारी जिंदगी में काम करता है, और हम जब गैर जुबान में दुआ करते हैं तो खुदा हमें इसके लिए अक्लो दनाई देता है। हम अक्लो दनाई के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। इसके साथ इसका हम सेकंड जो पॉइंट है जुबानों का तर्जमा। अगर एक ईमानदार अपने जज्बात और एहसासात को मुनज़्ज़म करे और दुआ करे तो वो मौसर तर्जुमा करने की बरकत और तौफीक पा सकता है। अगर आप गैर जुबान बोलते हैं तो आप खुदा से जब दुआ करेंगे कि खुदावंदा जिस तरह हमें इल्मियत का कलाम, हिकमत और रूहों का इम्तियाज करने के लिए हम दुआ करते हैं, हर चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लेने के लिए, कि हमें इसके लिए अक्लो दनाई बख्श, तो खुदा हमें इसके लिए भी जब हम गैर जुबान बोलते हैं तो गैर जुबान के तर्जुमे के लिए भी हम दुआ कर सकते हैं कि खुदावंदा अगर मैं रूहुल कुद्स से मामूर हूँ, रूहुल कुद्स मेरी ज़िंदगी में काम करता है, मैं गैर जुबान बोलता हूँ, तरह तरह की ज़ुबानों का मुझे पता है, मैं बोलता हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए तर्जुमे की भी ज़रूरत है। बहुत से खादमीन जो इस बारे में डिस्कशन करते थे तो वो यही बात कहते थे, जैसे कि खुदा के कलाम में भी हम देखेंगे पहला करंथियों 14:5 में कि जब गैर जुबानें बोली जाती हैं तो उसके लिए हमें खुदा के हजूर झुकने की ज़रूरत है कि हमें खुदा इसका तर्जुमा भी अता करे। हालेलुया। सो भाई पहला करंथियों 14 उसकी 5 में देखेंगे। अगरचे मैं ये चाहता हूं कि तुम सब बेगाना जुबानों में बातें करो, लेकिन ज्यादातर यही चाहता हूं कि नबूवत करो, और अगर बेगाना जुबानें बोलने वाला कलीसिया की तरक्की के लिए तर्जुमा न करे तो नबूवत करने वाला उससे ऐसा ही है, जब गैर जुबान बोली जाती है तो उसके लिए कुछ लोगों को नबूवत की कलाम मिलता है, गैर जुबानों का तर्जुमा मिलता है ताकि वो उसको ट्रांसलेट कर सके, उसके बारे में बता सके। जब हम छोटे थे हमने ये मीटिंग्स अटेंड की हैं, तब इसके बारे में इतना पता नहीं था। बहुत से ऐसे खादमीन थे जो गैर जुबान बोलते थे, गैर जुबान का इस्तेमाल करते थे, लेकिन समझ नहीं आती थी कि क्या बोल रहे हैं। लेकिन खुदा ने ऐसे खादमीन भी दिए जो उसको ट्रांसलेट करते थे और उसको तर्जमे की सूरत में दूसरों को पता चलता था कि ये क्या कह रहे हैं। मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ, जब हम दाऊद की और मेरी शादी हुई तो दाऊद जो मेरे हस्बैंड, इनको गैर जुबान का नहीं पता था, लेकिन जब हम खुदा के खादिम के पास गए, उन्होंने दुआ की। वो एक सेशन रखते थे प्रेयर का, कि प्रेयर सेशन में जिस जिसको रूहुल कुद्स चाहिए, सिर्फ बात ये थी कि आपको दुआ करनी है, खुदा के साथ ज़्यादा टाइम गुजारना है। और जब हम खुदा के साथ 1 घंटा 2 घंटे दुआ में गुजारते थे तो खुदा इसके लिए आपकी दुआ को सुनता था। और जब इसी तरह ये उस सेशन में ठहरे हुए थे तो खुदा का रूह इन पर उतरा और ये गैर जुबान बोलना शुरू हुए। लेकिन जब हम गैर जुबान बोलते हैं तो उसके लिए हमें जब हमें गैर जुबान मिल जाती है तो उसके लिए हमें दोबारा दुआ करने की ज़रूरत है, दुआ में ठहरने की ज़रूरत है कि हमें इसका तर्जुमा भी मिले। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि जब मुझे गैर जुबान मिली तो इसके लिए मैंने दुआ में, मैं भी 1-2 घंटा दुआ में ठहरती थी। और उसके लिए मुझे ये था कि सब गैर जुबान बोलते हैं तो उसके लिए हमें तर्जुमे की भी ज़रूरत है, उसको ट्रांसलेट करने की, हमें बात का तो पता चले हम बोल क्या रहे हैं। तो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ। तो जब गैर जुबान के साथ मुझे तर्जुमे के साथ मिला तो मैं इस चीज़ के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। और आप सबसे भी यही कहती हूँ कि अगर आप अपने दिल में इस चीज़ की चाहत रखती हैं कि गैर जुबान आप बोलें, तरह तरह की ज़ुबानें आपकी ज़िंदगियों में आए, तो तब ये मुमकिन होगा कि जब आप
اس کے ترجمے کے لیے بھی گھنٹوں دعا میں ٹھہریں گے تو تب خدا آپ کی زندگی میں کام کرے گا. ہاللیلویہ. اور پھر ہم دیکھتے ہیں نبوتی کلام. نبوت ہمیشہ نیکی کا باعث بنتی ہے، اس لیے ایماندار کی زندگی میں یہ جوش و جذبہ اور پھل بڑھاتی ہے تاکہ نبوت ان کے وسیلہ سے ہو جو ایماندار، خود غرضی اور اتنے ہی حوال کا خیال رکھے. ان کے وسیلہ سے نبوت ہونا دشوار ہے. پہلا کرنتھیوں 14 باب اس کی 3 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن جو نبوت کرتا وہ آدمیوں سے ترقی اور نصیحت اور تسلی کی باتیں کہتا ہے. نبوت پاک روح کے وسیلہ سے ایماندار کی زندگی میں ایمانداروں کے لیے ظہور پذیر ہوتی رہے گی. بے شک جب ہم ان ساری باتوں پر عمل کرتے ہیں تو خدا ہماری زندگی میں ان ساری نعمتوں کے وسیلہ سے ہمیں برکات سے نوازتا ہے. اس لیے میرے عزیزو، ہماری زندگیوں میں یہ سب زیادہ ضروری ہے کہ ہم جب دعا میں بیٹھیں، آپ کو جس نعمت کی ضرورت ہے آپ خدا سے کہیں کہ خدا بندہ کہ تو نے روح